5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से नामांकन शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा, यानी 10 फरवरी से चुनावों की शुरुआत होगी। 7 चरण में चुनाव होने हैं। 14 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव होगा। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होगा और 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा। 5वें चरण का मतदान 27 तारीख को होगा। इसके बाद छठे चरण का चुनाव होगा 3 मार्च को और 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा, यानी अंतिम चरण का चुनाव। और 10 तारीख को काउंटिंग होगी, यानी 10 तारीख को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। जी, किसकी सरकार बनेगी, किसके भाग्य खुलेंगे, मतदाता ने आखिर तो 10 तारीख को यह तय होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होगा। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा। 14 फरवरी पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, यानी जब उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव होगा तो एक ही चरण में पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वोट डाले जाएंगे। वो तारीख है 14 फरवरी। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। 27 फरवरी और 3 मार्च को मणिपुर में मतदान होगा। 2 चरणों में वोटिंग होगी, मतदान होगा। सभी 5 राज्यों की काउंटिंग जो है वो 10 तारीख को 10 मार्च को होगी, यानी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। जी, 10 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे, लेकिन विजय जुलूस नहीं निकलेगा। चुनाव आयोग का चाबुक, विजय जुलूस नहीं निकलेगा। 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, साइकिल रैली, पदयात्रा पर चुनाव आयोग का सख्त ऐलान नहीं किए जा सकेंगे। इस तरह के कोई भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम। The Commission has decided that no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padayatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and all elections of 5 states will be conducted in 7 places. The first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January, last date of nominations 1st February, scrutiny of nominations 2nd February, last date of withdrawal of candidature 4th February and date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase,
issue of notification 27th January, last date of nominations 3rd February, scrutiny of nominations 4th February, last date of withdrawal of candidature 7th February, and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February, last date of notification, last nomination 8th February, scrutiny of nominations 9th February, last date of withdrawal of candidature 11th February, and date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February, and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February, last date of nominations 17th February, scrutiny of nominations 18th February, last date of withdrawal of candidature. उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ करके अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।
योगी आदित्यनाथ भरोसा जता रहे हैं कि जो काम किया है उन्होंने, उसके आधार पर जनता एक बार फिर उन्हें चुनेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता 5 साल त्रस्त रही है बीजेपी के राज में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व के काल में, और इसलिए अब उनके जाने के दिन आ गए हैं। जो तारीखों का ऐलान हुआ वो दरअसल बीजेपी के जाने की तारीख है। जी, तारीखों को लेकर बात है। तारीखों को लेकर जो चिंता थी वो तो चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर साफ कर दिया, लेकिन नेताओं के मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं अर्चना। और जहां तक बात की जाए, जनता को तो ये लगता है, आप जिस शहर से आती हैं वहां एक लड्डू बनते हैं, आपको याद होगा, ठग्गू के लड्डू। जनता को ये लगता है कि ये सियासत वाले ठगते तो नहीं है कहीं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, संजीव कौशिक और धनंजय गिरी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि आप लोगों की जाने की तारीखें हैं, जिन तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है, जनता त्रस्त है आप लोगों से। कौन से ऐसे वादे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं उन्हें? देखिए, जनता जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले भारतीय है, फिर जनता है, फिर पार्टी है। हमारे लिए पार्टी सबसे बाद में है, उसके पहले जनता है, उसके पहले देश है। और हमारे साथ देश की जनता बड़े मजबूती के साथ खड़ी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में कार्य कर रही है, उसलिए हमारे साथ देश की जनता मजबूती के साथ खड़ी है। प्रदेश में योगी और देश में जो यशस्वी प्रधानमंत्री महायोगी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो देश की अस्मिता और देश के विकास की जो धारा बह रही है, जो गंगा बह रही है, जो गांव गरीब किसान का सम्मान किया जा रहा है, जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से आम आदमी तक, कॉमन मैन तक, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंची है, विकास की धारा पहुंची है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या माताओं बहनों की आंखों में जो आंसू आते थे उसको हटाने का काम किया गया, गैस योजना से, उज्ज्वला योजना से, या तरह तरह की डीबीटी ट्रांसफर किया गया। जितने तरह की योजनाएं हो सकती है जन कल्याण की, लोक कल्याण की। और इसी बीच में जो वैश्विक महामारी, इतनी बड़ी आपदा आई, उससे जिस ढंग से लड़ी है हमारी सरकार ने, उस ढंग से देश की, प्रदेश की सारी जनता हमारे साथ खड़ी है और हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है। ये हम किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, हम किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। और उत्तर प्रदेश से, ये देश की जनता से ये बात छुपी हुई नहीं है कि जो लोग दावा कर रहे हैं किस गुणागणित से दावा कर रहे हैं और किस बात से उम्मीद लगा रहे हैं। हमें देश की जनता का पूरा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस फॉर्मूले के तहत हम है। और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी जनता हमारे साथ खड़ी होगी, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और हम उसके दिए हुए मैंडेट का पहले भी सम्मान किए और आगे भी करेंगे। और जिस ढंग से हम लोग जनता के बीच में है, 24 घंटे 24/7 अहरनिश सेवा में है, लगातार हम लोग जिस तरह से जनता के बीच में है, उस तरह से हमें जनता का जो फीडबैक है, जो विश्वास है, और हमारे जिस लेवल पे कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं और विश्वस्त हैं कि हम सरकार को प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। जी, सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर, और उनका जो बयान आया कि जनता जनार्दन पूरा आशीर्वाद उन्हें ही देगी क्योंकि उनके नेतृत्व की यूपी में सरकार है। संजीव कौशिक जी, बात शुरू हुई थी कि हम विकास की बात करेंगे। विकास के एक्सप्रेसवे से गाड़ी चली, निकलकर धर्म पर आई और धर्म से वो मंदिर तक चली गई। आपकी पार्टी है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आपकी विचारधारा कांग्रेस के प्रति हमेशा झुकी देती है। जी हाँ, झुकाई देती है। मेरा आपसे ये सवाल है संजीव जी कि आखिर कांग्रेस 3 में ना 13 में कहां खड़ी होगी कांग्रेस? देखिए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों के इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतती है और खास करके प्रतीकों की राजनीति करने वाली पार्टी है। योगी जी जब ये कहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से या उनके प्रेरणा से विकास के राह पर उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो जाहिर सी बात है, इसका मायने तो है। जाहिर बात है कि एक और मायने निकलते हैं कि आदरणीय योगी जी नहीं, अब मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि आपने विकास किया है, यदि आपने विश्वास जीता है, यदि आपने विश्वास बहाल किया है, तो निश्चित तौर पर योगी जी को ही चेहरा बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जब आप उत्तर प्रदेश में विकास की बात करते हैं, तमाम तरह के वादे, इससे पहले लंबी फहरिस्त है वहाँ लोग, उन सारे फहरिस्त। संजीव जी, मुझे ये बताइए संजीव जी, जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि लड़की हूँ, चुनाव लड़ सकती हूँ, 40% आरक्षण, चेहरे कहां से आएंगे? 403 सीटें हैं। हाँ, निश्चित तौर पे आपका ये सवाल वाजिब है, चेहरे आएंगे कहां से। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 40% के बारे में इंतजार कर रही है? वो नहीं चाहती है कि 40% की भागीदारी हो महिलाओं की। यह बात तो तय है
कि आप भी चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि देश की राजनीति में 40% महिलाओं की भागीदारी हो। हर एक मामले में आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। ये चेहरे नहीं दिखाई दे इसलिए क्या 40% की बात हम नहीं करें, या फिर 40% के लिए लोगों के मन में या उस महिलाओं के मन में एक विश्वास और भरोसा जगाए कि आप आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। ये 40% की घोषणा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2017 में कांग्रेस को सिर्फ 6% के लगभग वोट मिला था। ये घोषणा पंजाब में क्यों नहीं, जहां पर उनकी सरकार है? ये घोषणा उत्तराखंड में क्यों नहीं? वहां की महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा क्यों? देखिए, नहीं इनोसेंट हम हैं ना, आप हैं ना, बाकी देश की जनता है। सारे लोग समझ रहे हैं कि इसके राजनीतिक मायने हैं। जाहिर सी बात है कि जहां चुनौती होगी, जहां जगह बनाने की बात होगी, वहां इस तरह की बात होती है। कहां कोई देश के प्रधानमंत्री कहां दौरा कर रहे हैं, बाकी देश के अन्य हिस्सों में कहां दौरा कर रहे हैं? वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पंजाब में दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग समझ रहे हैं कि राजनीति के बेला में निश्चित तौर पर राजनीतिक बातें होंगी और जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास होगा। ये कहने में कोई बात नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूँ कि ये एक राजनीतिक कदम है, जिसके इस कदम की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। बाकी अन्य पार्टियां भी संजीव जी आप बने रहें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। चुनाव के ऐलान के बाद शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, चन्नी सरकार ने शासन को सर्कस बना दिया। सुखबीर सिंह बादल पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी देगी स्थिर और मजबूत सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल का बड़ा बयान। चन्नी सरकार के शासन ने पंजाब, उनकी जो सरकार है वो पंजाब में सर्कस की तरह है। अर्चना, बिल्कुल, और पंजाब में इस बार समीकरण बहुत बदले हुए हैं। 2017 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और ऐलान किया है शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष ने कि बड़ी जीत हासिल करेगी। चन्नी सरकार ने शासन को सर्कस बना दिया है, यानी चन्नी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष ने। जी, इस बीच हमारे पास लगातार तारीखों के ऐलान के बाद सारे बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। जी हां, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, और कुछ और नेता लगातार उनके बयान आ रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। देखिए, मैंने पहले दिन से पूरे मनोयोग के साथ जो भी मुझे समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृति हुई हैं। और 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से बहुत सी योजनाएं पूरी हो गई है, बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड की जनता के साथ जिस प्रकार का मोदी जी का लगाव है, उत्तराखंड की भूमि से जो उनका जुड़ाव है, यहाँ के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, हमारी सरकार ने भी उनके निर्देशन में बहुत सारे यहाँ पर काम किए हैं। चाहे आज वो हम सड़कों की बात करें, चाहे आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, पर्यटन, परिवहन, हर सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि हमने काम किया है, हम काम करेंगे, हम काम करते हैं और हम काम भविष्य में भी करेंगे। किया है, करती है और करेगी। और ये काम सिर्फ भाजपा करेगी और यहाँ की जनता इसको भली भांति जानती है। भाजपा ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया था। आज अटल जी ने जो राज्य बनाया, उस राज्य को केंद्र में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संवारने का काम हो रहा है, आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा का स्वागत करती है। यह चुनाव की प्रतीक्षा प्रदेश की जनता को भी थी, भाजपा को भी थी, भाजपा के एक कार्यकर्ता को भी थी, हर राजनीतिक दल से जो भी जुड़ा हुआ है उसको भी थी। आज चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो जाएगी और 10 मार्च को
मैं मानता हूं कि 11 बजे तक, चूंकि आजकल ईवीएम से चूंकि मतदान होता है, तो 11 बजे तक पूरा संकेत लगभग आ जाता है। तो 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का जनता 12 बजा देगी और फिर से कमल खिला देगी। फिर से गुंडागर्दी, दंगा, जमीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, दुकान पे कब्जा, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, इस पे लगाम सदा सदा के लिए लगा देगी। और इसी के लिए हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं, जनता की अदालत में राजनीतिक दल के लोगों को जाना होता है, तो हम लोग उसके जाने के लिए तैयार थे। और मैं ये कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तो भी शतक नहीं। और हम जो निर्वाचन आयोग ने घोषणा करी है, कोविड के मद्देनजर जो गाइडलाइंस रखी हैं, उसका स्वागत भी करते हैं और एक बड़ी जिम्मेदार पार्टी होने के नाते उसका पालन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है और हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं, उनकी जान पे कोई खतरा ना आए। वो अपना मतदान तो करें, लेकिन सुरक्षित होकर करें। और इसीलिए जो आज गाइडलाइन सामने आई हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। पूरे दमखम से भारतीय जनता पार्टी 5 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और पूरा यकीन हमें है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल 5 प्रदेशों में खिलेगा। हम सब ने देखा था कि इस बीच के कालखंड में जब कोरोना की आपदा आई थी, देश नहीं दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब हाइबरनेशन में थी, तब कोई यदि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, राइट फ्रॉम बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, अगर धरातल पे कोई काम कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा था। ये संगठन की ताकत और निरंतर सक्रियता के आधार पर जो तारीखें इलेक्शन कमीशन ने अभी जाहिर की हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, आप सुन रहे थे लगातार बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री शेखावत भी कह रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य, पुष्कर सिंह धामी, गौरव भाटिया। अर्चना, गौरव भाटिया को मैं सुन रहा था, वो पेशे से वकील हैं और मुझे याद आता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें जो जस्टिस थे जो इसकी सुनवाई कर रहे थे जनहित याचिका की, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि एक बार जान है तो जहान है, जरा कोशिश करें कि ये चुनाव टाल दिए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग ने, मुझे ऐसा लगता है, संज्ञान तो लिया होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने भी जो बात की, और जितने भी राजनीतिक दल जिनसे हमारी चर्चा होती वो यही कहते हैं, और ये सच भी है, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि कोविड ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अगले 2 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, उसके बाद पीक पर जाएगा, ये कोई तय नहीं कर सकता। तो अब इसके साथ ही जीवन जीने की आदत हमें डालनी होगी, और शायद इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो आज घोषणाएं की हैं वो लग रही हैं। जिस तरह से रैलियों को रद्द किया गया, पदयात्रा को रद्द किया गया, किसी भी तरह से रथ नहीं निकलेंगे, चुनावी रथ, इसको रद्द किया गया। 15 जुलाई तक वर्चुअल रैली सिर्फ आप कर सकते हैं, उसके बाद समीक्षा होगी हालात की कि कैसी स्थिति है। और जिस तरह से जो स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी हैं या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे चर्चा की, यानी तमाम चर्चा बातचीत करने के बाद, हेल्थ एक्सपर्ट से बात करने के बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी चर्चा हुई, और कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि चुनाव टले, चुनाव समय पर हो, ये जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास चुनाव आयोग भी चल रहा है। हाईकोर्ट ने यह बात जरूर कही थी, लेकिन हमको यह भी याद रखना होगा कि जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के होने थे तो कोर्ट ने ही कहा था कि चुनाव अपने समय पे हो, चुनावों को ना टाला जाए। तो परिस्थितियों के हिसाब से शायद, क्योंकि कोविड को कोई पहले से नहीं बता सकता, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए शायद वर्जन और डिसीजन भी बदलते रहते हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं।
संजीव जी, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां आपके लिए चुनौती है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, वहां तो मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा गोवा में आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी भी आपके लिए दिक्कत बन सकती हैं, और उत्तराखंड में तो आपकी अपनी पार्टी में इतनी कलह है, आंतरिक कलह इतनी ज्यादा है कि वहां पर आपको अपनों से ही पार पाना मुश्किल है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ। कांग्रेस की विचारधारा से निश्चित तौर पर कुछ लगाव और झुकाव है, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस की तरफ से बात करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये बात तय है कि पहले के प्रदर्शन में और आज के प्रदर्शन में बहुत सुधार आपको दिखाई देगा, चाहे पंजाब की बात हो या उत्तराखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में तल्ख तेवर, यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद ये तल्ख तेवर पहले से यदि ये धारण की हुई होती कांग्रेस पार्टी तो आज मायने कुछ और होते और बेहतर नतीजे आ सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देर से, हमेशा ये शिकायत एक रहती है और ये भी शिकायत रहती है कि कांग्रेस पार्टी के रहते यदि जग जाती तो आज नतीजे कुछ और होते। लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को धकेलने का या हाशिए पर छोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी में कुछ चीजें हैं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि कांग्रेस पार्टी 135 साल के इतिहास में 60 बार से ज्यादा टूटी है, बावजूद उसके वो तन के खड़ी है। कुछ तो कोई बात होगी कि जोड़ती है लोगों को और लोगों के साथ अपने आप को जोड़े रखती है कांग्रेस पार्टी। पिछली बार लगातार 10 साल तक ये सत्ता में रही है, में रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिसको मटियामेट करने की बात लोग सोचते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी आज भी यदि वजूद में और तन के खड़ा होने का प्रयास करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति नहीं करती है, ये उसकी कमी है। वो कभी भी जो राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवाद को कम से कम चुनाव में इस्तेमाल नहीं करती है, यह कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। लोगों को जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है, सबको एक साथ ले चलने की बात करती है। बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इस तरह की चर्चा वो नहीं करती है, जिसके पर क्योंकि आज के वक्त में ये कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति का पाठ किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने ही पढ़ाना शुरू किया था। नहीं तो आप हमें बताइए कि तुष्टीकरण का पाठ यदि कांग्रेस पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे बहुसंख्यक वर्ग को कांग्रेस पार्टी चुनती, अल्पसंख्यक वर्ग को क्यों चुनती, जो लगातार उस पर आरोप लगाया जाता है। वर्ग के लिए सीख लिया, फर्क इतना ही हुआ है। चलिए आपके पास लौटेंगे संजीव जी, हमारे साथ धनंजय भी बने हुए, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन वापस हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इंडिया का वोट युद्ध में आपका फिर एक बार स्वागत है और मेरे साथ अर्चना भी लगातार बनी हुई है और हमारे साथ एक खास मेहमान, जी हाँ, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्चना, नमस्कार। अनिल जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। ये बताइए कि आपकी पार्टी को सबसे बड़ी मुश्किल किस राज्य में है और क्या चुनौती है और किस पार्टी से सबसे बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्य में पूरी तरह से सशक्त हैं। मात्र पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां हमारी वर्तमान में सरकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की जनता भी इस बार मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी इस बार पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। अनिल जी आप लें। अनिल जी, गोवा में आम आदमी पार्टी और टीएमसी कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? उत्तराखंड में आपकी पार्टी अंदरूनी कलह से ही परेशान है, तो ये 2 राज्य तो बड़ी चुनौती आपको दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं, गोवा में तो कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी अपना जितना उनका वो है कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से गोवा में उनकी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो जो उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, उन्होंने खुद ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि मैं चुनाव के युद्ध में जा रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ पार बांध दिए गए हैं। और आपको याद होगा उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कटाक्ष भी किया था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जब टीम का कैप्टन ही आश्वस्त ना हो तो बाकी तो आप समझ सकती हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है। और उत्तराखंड की अनिल जी, हरक सिंह रावत किस सरकार में मंत्री हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, हरक सिंह जी हमारे मंत्री हैं और निश्चित रूप से वो भी नाराज हुए थे। अनिल जी, वो भी नाराज हुए थे। पूरी तरह से
नहीं 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 देखिए, हमारे यहाँ नाराजगी नहीं है। लोकतंत्र में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारा एक दूसरे के प्रति कुछ विचारों का मेल नहीं खाते हो, लेकिन आप देखिए हरक सिंह जी नाराज हुए, इमीडिएटली हमारे साथ आ गए और उन्होंने खुद कहा उनकी मांगें जो जेन्युइन थी वो इमीडिएट मान ली गई, और हरक सिंह जी पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ इस चुनाव में है, और निश्चित रूप से हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे हर राज्य में। संजीव जी, चुनाव आयोग ने जिस तरह की घोषणा, आज की जो तारीखों की घोषणा की, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो घोषणाएं की हैं, क्या आपको लग रहा है वही सर्वथा उचित और इस समय बेहतरीन तरीका हो सकता था, क्योंकि चुनाव टालने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी तैयार नहीं है? हेलो, पार्टियां भी चुनाव और इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले, आपसे पहले मैंने के बाद मैं दोहरा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने नई बात कुछ नहीं करी। यदि नई बात कुछ है उसमें तो ये है कि 15 तारीख तक सारे रैली बंद होंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, देखा जाएगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या मजबूती के साथ तटस्थ होकर जो भूमिका निभानी थी वो निभा पाएगा, क्योंकि इससे पहले 2 इलेक्शनों में हमने, चाहे बिहार हो या खास करके बंगाल इलेक्शन हो, उसमें हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से दुर्बल रवैया रहा है। हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन को जब तक अदालतों की फटकार नहीं लगी है तब तक इलेक्शन कमीशन कई बार निष्क्रिय रहा और इलेक्शन में तब आया, उसके बाद में आया। तो क्या वही रवैया रहेगा? चूंकि हम जानते हैं, मतलब आपको कुल मिला के आप लोगों को जो परेशानी है, आप कह रहे हैं जो आपको शक है वो इलेक्शन कमीशन पर ही है, बाकी खत्म। बाकी वो कैसे चुनाव कराएगा इस पे कोई वो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे ही डाउट है, आपको एक संस्था पे ही डाउट है पूरी। कई बार इलेक्शन कमीशन पर कई बार भारतीय जनता लोगों के ऊपर यदि किसी तरह के आरोप लगते हैं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्क्रिय भाव से शांत रहता है और विपक्षी पार्टियों पर लगती है तो एक्शन ले लेता है। तो जाहिर सी बात है कि ये बात तो कहेंगे ना, कोई कहेगा, जो देखेगा वो कहेगा कि निश्चित तौर पे वो उनके कार्यों में जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि यदि इलेक्शन कमीशन अपने ताकत का उपयोग करे तो निश्चित तौर पे वो काम करवा पाएगी और लोग भी करेंगे इलेक्शन कमीशन से। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अपने कोई भी प्रोफेशन को वापस ला पाएगी इस इलेक्शन में, ये सवाल है। संजीव जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना नेटवर्क देखें, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो टूट कर आ रही है। संजीव जी, आता हूं आपके पास। अनिल अग्रवाल जी, अनिल जी, जहां तक बात की आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो कि यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसी क्या अन पड़ी थी कि उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी में काम जारी, यानी कि निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। आखिर मंदिर की चौखट पर ऐन चुनाव के पहले क्यों पहुंचना पड़ा? देखिए, आप इसको चुनाव से मत जोड़िए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और हम लोगों ने इसमें स्पष्ट किया ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है। इसको आप चुनाव से मत जोड़िए। और आपको ध्यान होगा, कुछ लोग पहले तक ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल राम मंदिर को और दूसरी चीज़ों को चुनावी मुद्दा बनाती है, उनको मंदिर बनवाने से कोई लेना देना नहीं। आज चूँकि भव्य मंदिर बन रहा है तो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के विकास के काम पे, लॉ एंड ऑर्डर के काम पे, प्रदेश में जो निवेश हुआ है उसको ध्यान में रख के उसको जनता के बीच लेके जाएंगे। जी चलिए, तो जो काम हुआ उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के नेता जा रहे हैं और उनको अपनी बात बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज ने बात की है। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है, जिसका इंतजार सभी को था, तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम जनता को। अब वो दिन आ गया है, यानी कि 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 7 मार्च तक ये चुनाव चलेंगे। 10 तारीख को काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि सरकार फिर से रिपीट होती है या किसकी बनती है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, क्या कहना है? सबसे पहले तो चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई, ये हम सबको प्रतीक्षा थी, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर प्रकार से तैयार थी, तैयार है
और 2022 का चुनाव हम 2017 की तरह फिर से जीतेंगे। फिर से सुशासन का, विकास का, गुंडागर्दी से मुक्ति का, भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का फिर से हमारा कमल खिलेगा। फिर से सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों सब एक हो जाएंगे, तब भी भाजपा की विजय होगी, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जनता के आशीर्वाद से। सर 2014 में प्रचंड जीत, 2017 में उससे भी प्रचंड, 19 में और ज्यादा, 2022 में क्या? मैंने कहा कि 2014, 2017, 2019 3 बार हम जीत चुके हैं, चौथी बार जीतेंगे और जीत का चौका वह भाजपा का भी होगा, वह उत्तर प्रदेश की जनता का भी होगा। इस बार सर कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि अधिक से अधिक डिजिटल पर जोर लिया जाए, तो बीजेपी की कैसी तैयारी है? ये भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से चुनाव के लिए तैयार है। डिजिटल प्लेटफार्म से जाना होगा, वर्चुअली रैली करना होगा, एक्चुअली रैली करना होगा, हम हर प्रकार से तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है और हमें भरोसा भी है कि जिस भी प्रकार से आयोग जो भी कर रहा है वो जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कर रहा है। इसलिए हम चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करते हुए और उसके अनुसार आगे बढ़े। सर इस बार हिंदुत्व मुद्दा रहेगा कि विकास? देखिए, हिंदुत्व तो जीवन शैली है, हिंदुत्व को अलग करके कुछ सोचना व्यर्थ है, लेकिन हमारा अगर भाषा की दृष्टि से जाए तो हमारा मुद्दा तो विकास है, हमारा मुद्दा सुशासन है, हमारा मुद्दा लोगों, गरीबों को जीवन स्तर को सुधारना है, हमारे मुद्दा किसानों की आमदनी बढ़ाना है, हमें भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करके अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का काम करना है। इंफ्रा हमारा देश के सभी प्रदेशों से सबसे अच्छा, इस पर हमारा जोर है और इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उसी के कारण कमल खिल रहा है। उसी के कारण से मैं श्री अखिलेश यादव जी का आज हताशा भरा बयान चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ मैंने सुना है। इससे ये मैं कह सकता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव परिणाम आने से पहले अपनी पराजय स्वीकार किया है और यह उन्होंने साहस का परिचय दिया है, उनको धन्यवाद देता हूँ। सर अखिलेश यादव ने एक चीज़ और कही है कि हम उतने प्रिपेयर नहीं हैं वर्चुअल रैली और इसको लेकर जितनी भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूँ इस पर मुझे बयान देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से तैयार है। चुनाव में सारे विरोधी दल जो हमारे हैं वो एक हो जाएंगे, तब भी हम चुनाव जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से फिर जीतेंगे, फिर भाजपा की सरकार 300 से अधिक सीटें जीत करके बनेगी। सर इस बार प्रयागराज से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? इस बार ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। चुनाव जरूर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि अगर पार्टी उन्हें निर्देश देती है तो वो चुनाव में जरूर उतरेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और 2022 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता की पार्टी की वापसी होगी। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। चुनाव पूर्व हर नेता दम भरता है, जी हाँ जीतेंगे हम, ये तो जनता तय करती है कि सिकंदर कौन होगा। शास्त्रों से सियासत में साम दाम दंड भेद सब जायज है, ये तो कलयुग है। जी हाँ, आगे मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी अर्चना सिंह के पास, जो बताएंगी। फिर एक बार आप लोगों के लिए जरूरी है ये जानना कि आखिर देश के 5 विधानसभा, जी हाँ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 690 सीटें हैं, ध्यान रहिए 403 यूपी से। जानकारी देंगी अर्चना। ओवर टू यू अर्चना विद ऑल द डिटेल्स। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है और इसकी शुरुआत हो जाएगी 10 फरवरी से। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए, जिसमें 7 चरण में चुनाव होने हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि पहले चरण का जो चुनाव है उसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो 14 जनवरी को जारी होगा। पहले फेज में 58 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी को जारी होगा और इसके लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट है, यानी नॉमिनेशन जो कैंडिडेट हैं वो दायर कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं 21 जनवरी। और चुनाव आयोग ने कहा है कि आप ऑनलाइन नॉमिनेशन भी दाखिल कर सकते हैं, यानी ये सुविधा दी गई है, ये ऑप्शन दिया गया है कि ऑनलाइन नॉमिनेशन भी आप दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी रखी गई है और जो पोल की डेट है, यानी जिस दिन चुनाव होंगे वो है 10 फरवरी को। पहले चरण के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में और पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा, ये वो जिले हैं जहां पर चुनाव होंगे पहले चरण की 58 सीटों के लिए।
दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। और नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट है 28 जनवरी तक उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और विड्रॉ करने की, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। मतदान होगा इन सीटों पर 14 फरवरी को, यानी 55 सीटों पर मतदान होगा 14 फरवरी को। और सेकंड फेज में वो सीटें जिनमें मतदान होना है वो हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। ये वो सीटें हैं। 55 सीटों पर चुनाव होगा। ये जिले हैं जो मैंने आपको बताया, उनकी 55 सीटों पर चुनाव होगा, वो होगा 14 फरवरी को। इसके अलावा इसके बाद तीसरे फेज का चुनाव होगा और तीसरे फेज में 59 सीटों के लिए लोग मतदान करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन 25 जनवरी को जारी होगा। इसमें नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख 1 फरवरी है, यानी 59 सीटों के लिए 1 फरवरी को नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे उम्मीदवार। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी है और 20 तारीख यानी रविवार को वोटिंग होगी। 20 तारीख को इन 59 सीटों के लिए लोग वोटिंग कर पाएंगे। और इनमें जो जिले शामिल हैं तीसरे फेज में वो भी आपको बता देती हूँ, वो है हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। ये वो जिले हैं जिनकी 59 सीटों के लिए तीसरे फेज में वोटिंग होगी और वो तारीख है 20 फरवरी। चौथे फेज की 60 सीटों के लिए मतदान होगा 23 फरवरी को। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 27 जनवरी को जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। इसमें नॉमिनेशन 3 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 फरवरी। और डेट ऑफ पोल यानी चुनाव की तारीख 23 फरवरी है चौथे फेज के लिए, यानी 60 सीटों पर चौथे फेज में वोट डाले जाएंगे। और इसके लिए मतदान होगा 23 तारीख को। जो सीटें हैं चौथे फेज के लिए वो हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। इसके बाद 5वें फेज का चुनाव होगा जिसमें 60 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और ये चुनाव होगा 27 फरवरी को। और इसमें नॉमिनेशन फाइल नोटिफिकेशन की डेट 1 फरवरी है। इसके अलावा नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी है। उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे 11 फरवरी तक। 11 फरवरी आखिरी दिन है जब तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। और वोट होगा यानी पोलिंग होगी 27 फरवरी को इन 60 सीटों के लिए। अर्चना, आपको रोकना पड़ेगा मुझे। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री के तौर पे और पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करता हूं। हर पॉलिटिशियन को उड़ीक होती है कब इलेक्शन होने हैं, तो अब इलेक्शन तय हो गए हैं। आज तक तो हम टोटली सरकार के कामों के ऊपर ही काम कर रहे थे, अब इलेक्शन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर पंजाब के लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 111 दिन मुख्यमंत्री बनकर काम करने का मौका मिला। और इसमें मुझे खुशी है कि मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाया हूं। 111 दिन में मैंने 1100 दिन का काम करने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुआ हूं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि मैं पंजाब के मिडिल क्लास, गरीब, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, सबको राहत देने में कामयाब हुआ। और हमारी सरकार में पंजाब के लोगों ने अपना विश्वास जताया है। बात पंजाब की हुई है, पंजाबियत की हुई है, पंजाब की बुलंदी की हुई है। और मुझे खुशी है कि परमात्मा की कृपा से, जैसे कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
परमात्मा की कृपा से मैं पंजाब के लोगों के साथ खड़ सका हूँ, उनके कंधे के साथ कंधा जोड़कर उनके साथ खड़ा हूँ। बाहर से जो ताकतें पंजाब को ख़राब करना चाहती थी उनको विफल किया। जो लोग पंजाब में पंजाब को बदनाम करना चाहते थे उनको पीछे मुड़ना पड़ा है, उनको पंजाब से प्यार नहीं मिला है। और पंजाब के लोगों को मुझे गौरव है कि मैं पंजाब और पंजाबियों के साथ खड़ा हूँ और हर तरीके से खड़ा हूँ। मुझे परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए और कर रहा हूँ कि परमात्मा ने मुझे ताकत इस तरीके की मौके पे दी कि मेरी जो टांगें लड़खड़ाई नहीं, मेरा कंधे लड़खड़ाए नहीं, और मैं आगे भी ऐसे ही परमात्मा से हाथ जोड़कर मेरा अरदास रहेगी कि परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं पंजाब के, अपनी स्टेट के, अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं। मैं फिर पंजाबियों का, देश का, अपनी पार्टी का, पार्टी हाई कमांड राहुल गांधी जी का बहुत बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। सर, अभी जो है काफ़ी सारी पाबंदियां होंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है रैली नहीं कर सकते हैं आप 15 जनवरी तक, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, वो भी 5 लोगों के साथ। आपको लगता है चैलेंजेस काफ़ी होंगे इस बार चुनाव लड़ने में, क्योंकि कोविड की वेव जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखो, देश का कानून है, हम कानून के अंदर रहने वाले डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं। जैसे चुनाव कमीशन रूल बनाएगा, हम उन रूलों के अंदर ही खेलेंगे, रूलों के बाहर नहीं जाएंगे। और ये सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए, हमारी अकेली पार्टी के लिए नहीं है। तो जैसे सबके लिए रूल है वैसे ही हम रूल बनाएंगे। पहली बार शायद इस तरह का हो रहा है इतने सालों में, तो क्या चैलेंज है कि नया? हर चीज़ अपने आप में एक बार नहीं होती। तो आज अगर माहौल ऐसा है, तो अगर बीमारी का खतरा है, तो हमें चुनाव कमीशन के साथ चलना है, वैसे ही करेंगे जैसे वो कहेंगे। चलिए, आपने कहा कि आपको 111 दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और आपने बेहतर काम किया है। आपको लगता है कि अब जब चुनाव होगा तो सीएम के चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी आपको रखेगी? क्या इस तरह की उम्मीद आप रखते हैं? ये प्रेरोगेटिव पार्टी का होता है। मैंने जब शपथ ली थी उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। तो पार्टी जैसे सोचेगी, जैसे पार्टी सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, तो पब्लिक से जो फीडबैक जाएगा पार्टी को, पार्टी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। सर, 4.5 साल जिस तरह से सरकार रही, आपने भी जो काम किया, आपको क्या लगता है कि बेहतर काम किया आपने? आपकी जो जी हाँ अर्चना, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हर नेता चुनाव के पहले अपने मुंह मियां मिट्ठू, वैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री को आप सुन रही थी जो कह रहे थे 111 दिन यानी कि 111 मैंने काम किया, लेकिन काम 1100 दिन का किया। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है अर्चना आपके शहर से, आपके शहर कानपुर से। कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने वीआरएस लिया है और वीआरएस लेने के साथ साथ बीजेपी की सदस्यता भी ले ली और शायद चुनाव में भी हाथ आजमा सकते हैं अर्चना। बिल्कुल, आज उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद उन्होंने वीआरएस लिया और अब खबर यह है कि वो चुनाव में हिस्सा लेंगे, यानी वो भी चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी जनता की सेवा करते करते एक प्रशासनिक अधिकारी के बाद अब वो नेता बनेंगे। मनीष जी, ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, ये ट्रेंड बहुत पुराना है कि अधिकारी अक्सर चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन कुछ वक्त होता है जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं, लेकिन यहाँ तो वक्त के चंद घंटे भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। जी, एक चीज आपने देखी होगी, बिहार में जब सुशांत सिंह राजपूत का मसला चल रहा था तो वहां के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे, उनकी भी बड़ी लालसा थी, बड़े लालची दिखाई दे रहे थे कि वो सियासत में जाएं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, सब किया धरा उनका पानी हो गया। एक और बात अर्चना, खाकी से खादी पहन सकते हैं आप, खादी से खाकी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि खादी पहनने के लिए आपको कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप खाकी पहनते हैं तो आपको वो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। आपको कंपटीशन देना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ के आप निकलते हैं, क्योंकि कहते हैं
कि बहुत सारे जो आईएएस हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ही ज्यादातर सरकार चलाते हैं। तो इसीलिए भले ही खादी पहन ले, लेकिन खादी कभी खाकी नहीं पहन पाता, लेकिन वही खाकी को अपने इशारों पर जरूर नचाता है, ये हम सब देखते हैं। जाहिर सी बात है, मसला तबादलों का होता है, अच्छी पोस्टिंग का। जी हाँ, इंडिया का वोट युद्ध में अब के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज इंडिया पर जारी।